اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری 7 روزہ جنگ بندی بغیر کسی توسیع کے ختم۔ شمالی غزہ میں دھماکوں اور فائرنگ کی اطلاعات موصول۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کے بعد غزہ میں دوبارہ فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور اسرائیلی علاقے کی جانب حماس اور اسرائیل فائر کیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان آج سے جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا، جس کے بدلے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیلی جیل سے مزید 30 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں ہونے والی عارضی جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ 30 فلسطینی قیدیوں کو 8 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ملک بھر میں حلقہ بندیاں مکمل۔ ملک بھر میں قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی تھی، جس کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 266 حلقے ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ مشرق وسطی کی بحری صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کے جہاز PNS تغرل کی خلیج عدن میں تعیناتی ہوئی ہے۔ پاکستان تجارتی جہازوں کو درپیش خطرات سے بچانے کے لیے پاک بحریہ نے PNS تغرل کو تعینات کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS تغرل نے تعیناتی کا مقصد پاکستان تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فراز سر انجام دیں گے۔ ڈیزل، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں کمی۔ پیٹرول کی قیمت 281 روپے 34 پیسے فی لیٹر برقرار۔ نگراں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی، 279 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی۔ 100 انڈیکس میں 269 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ دوران کاروبار انڈیکس 60,880 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ دوسری طرف انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر 11 پیسے مہنگا ہوا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق دوران کاروبار انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 28 پیسے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے فنڈز کا استعمال میرٹ پر ہونا چاہیے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ اس اہم مسئلے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اب ایک موضوع نہیں، اہم چیلنج ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا۔ پاکستان ماحولیاتی بہتری کے لیے کوئلے سے چلنے والے منصوبوں کو متبادل توانائی پر منتقل کر رہا ہے۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ ایوانی صدر سے 4 سرکاری اداروں کو حکومتی سرپرستی سے آزاد کرنے کے آرڈیننس جاری۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے IMF معاہدے کے تحت 4 آرڈیننس جاری کر دیے ہیں۔ آرڈیننسز میں NAH کے ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل شپننگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 بھی شامل کیا۔
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मौसम अबर आलूद, बारिश का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात हुकाम के मुताबिक पेशावर में मुतला अबर आलूद होने के साथ बारिश का इम्कान है। सूबा के बेशतर इस्लाह में मतला अबर आलूद रहने के साथ बास मकामात पर बारिश मुतवक्की है। इस तरह चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और बालाकोट, नौशहरा, हरीपुर, पेशावर, कोहाट में भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली है। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान वजीर ने थाईलैंड के हरीफ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर तारीख अपने नाम कर ली। उस्मान वजीर के जारहाना अंदाज के सामने थाई बॉक्सर बेबस हो गया और तीसरे राउंड में ही नॉकआउट हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान वजीर ने अपनी 12वीं इंटरनेशनल फाइट में भी नाकाबिले शिकस्त रहने का एहसास बरकरार रखा। तारीख में पहली बार अफ्रीकी मुल्क युगांडा ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। रवांडा की टीम पहले बैटिंग करते हुए 65 रन पर ऑल आउट हो गई। क्वालिफाइंग राउंड में युगांडा ने 6 मैचों में से 5 में कामयाबी हासिल करके अफ्रीका रीजन में टॉप 2 में जगह बना ली। युगांडा ने क्वालिफाइंग राउंड में तंजानिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, रवांडा और केन्या को हराया, जबकि नामीबिया से शिकस्त का सामना किया। और मजहब की खातिर बॉलीवुड को खैराबाद कहने वाली साबिका भारतीय अदाकारा सना खान ने अपने बेटे तारिक जमील और शौहर मुफ्ती अंस के हमरा मरूफ इस्लामी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की। सना खान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जूनियर तारिक जमील हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात कर रहे हैं। मौलाना को देखकर वाकई अल्लाह याद आ जाता है। वो अंदर और बाहर से खूबसूरत इंसान है। हमेशा मुझे बेटी कहा और अपनी हिकमत भरे अल्फाज से मुझे बहुत ज्यादा सब्र दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जारी 7 रोजा जंगबंदी बगैर किसी तोसी के खत्म हो गई। शुमाली गजा में धमाकों और फायरिंग के इतलात मौसूल हुई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाने के बाद गजा में दोबारा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गजा में 7 रोज की जंगबंदी खत्म होने के बाद शुमाली गजा में धमाके और फायरिंग की इतलात मौसूल हुई। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा में हमला किया। इसराइली फौज ने इल्जाम आयद किया कि हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और इसराइली इलाके की जानिब से फायर किया गया। ताहम इसराइल के इस इल्जाम पर ताहाल हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 3 मरतबा तोसी हुई और आज जुमे के सुबह जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया, जिसमें कोई तोसी नहीं की गई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज की व्हाइट हाउस ने तस्दीक की थी कि वो कतर और मिस्र के साथ मिलकर हमास और इसराइल के दरमियान गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में तोसी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। जंगबंदी के आखिरी रोज हमास ने मजीद 8 इसराइलियों को रिहा किया, जिसके बदले में इसराइली जेल से मजीद 30 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए। हमास और इसराइल के दरमियान आरजी जंगबंदी के 7वें रोज हमास ने मजीद 8 इसराइलियों को रिहा कर दिया, जिसके बदले में इसराइली जेल से मजीद 30 फलस्तीनी कैदी रिहा किए गए। कतर और मिस्र की सॉलिसी में होने वाली आरजी जंगबंदी के मयाद खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। 30 फलस्तीनी कैदियों को 8 इसराइली अरगवालियों के बदले में रिहा किया गया। हमास ने पहले फ्रांस की दोहरी शोहरियत की हामिल 21 साल लड़की और 40 साल खातून को रिहा किया, जिसके बाद 2 बच्चे और 4 खवातीन समेत मजीद 6 इसराइलियों को रिहा किया गया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों में 23 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं।
तमाम फलस्तीनी कैदी शहरी रेड क्रॉस के हवाले कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे की तोसी मुद्दत खत्म होने के बाद आखिरी घंटों में जंगबंदी में मजीद एक रोज तोसी का फैसला किया गया। इधर अरब मीडिया का बताना है कि हमास की जानिब से गजा की पट्टी में इसराइल के साथ जंगबंदी में तोसी की तैयारी की जा रही है। 7वें रोज जंगबंदी आज सुबह 7 बजे या पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे खत्म हो रही है। जराए ने कहा कि सालिस फिलहाल जंगबंदी में एक इजाफी दिन के लिए मजबूत और मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क भर में हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्क भर में कौमी असम्बली के 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने नए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त भी जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के होंगे, जबकि सूबाई असम्बलियों के जनरल नशिस्तों के 593 हल्के मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खातीन की 60 और अकलियतों के 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। खवातीन की 60 महसूस नशिस्तों में से पंजाब की खवातीन के लिए 32, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और बलोचिस्तान में 4 नशिस्तें महसूस होंगी। इस तरह कौमी असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 342 से 6 नशिस्तें कम होकर 336 हो जाएगी। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम हुई हैं, जबकि बलोचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की नशिस्तें बरकरार रखी हैं, जबकि फाटा और केपी के इसमाम के बाद मजमूई नशिस्तें 47 से कम होकर 45 हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म खुद से तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें भी करेंगे। सरगोदा डिवीजन 2 दिसंबर, रावलपिंडी डिवीजन 3 दिसंबर, हजारा मालाकंड डिवीजन में 6 दिसंबर को मीटिंग होगी, जबकि लाहौर डिवीजन में 14, सिंध में 16, इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में कमी का फैसला किया है। निगरान वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी वजारत खजाना की जानिब से जारी कर दिया गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी नहीं की गई। अलबत्ता डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में कमी का फैसला किया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर की मंजूरी दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपए 16 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 175 रुपए 93 पैसे लीटर मुकर्रर की गई। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। मशरिक वस्ता की बहरी सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहर के जहाज PNS तगरल की खलीज उदन में तैनाती कर दी गई है। पाकिस्तानी तजारती जहाजों को दरपेश खतरात से बचाने के लिए पाक बहरिया ने PNS को तैनात किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तगरल की तैनाती का मकसद पाकिस्तान तजारती बहरी जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर बाकायदगी से फराइज सर अंजाम देते हैं। तर्जुमान का यह कहना था कि पाक बहरिया समंदर में अमन अमान के क्याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत भी काम करती है और खित्ते में बहरी अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर शीरी मिसारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मिसारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी भी करार दिया गया। इस मामले पर अदालत की जानिब से कहा गया कि डीजी इमिग्रेशन एक हफ्ते में पीसीएल से शीरी मिसारी का नाम निकाल कर रिपोर्ट दें। डीजी इमिग्रेशन एक हफ्ते में डेप्यूटी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। और अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट से मुतालिक। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी देखने को आई है। 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान कारोबार इंडेक्स 60,880 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नवंबर के आखिरी कारोबारी रोज कारोबार का मिला जुला रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स 29 पॉइंट्स के इजाफे से 60,531 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 11 पैसे महंगा हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक दौरान कारोबार इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 28 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। और अब बात करते हैं मौसम की। तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजलाह में मौसम अबर आलूद, बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमा मौसमियात हुकाम के मुताबिक पेशावर में मतला अबर आलूद होने के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सुबह के बेशतर इजलाह में मतला अबर आलूद रहने के साथ बास मकामात पर बारिश मुतवक्की है। इस तरह चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और बालाकोट, नौशहरा, हरिपुर, पेशावर, कोहाट और बन्नूह में बारिश का इम्कान है, जबकि वजीरिस्तान में अंधी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सुबह के बाद पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और खबर आपको दें कि खानेवाल और गिरदो नवाह में दूसरे रोज भी शदीद स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है। धुंध की वजह से मौसम सर्द हो गया। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अदनान। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शहर में। अगर बात की जाए खानेवाल के मौसम की तो खानेवाल शहर में दूसरे रोज़ भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। खानेवाल में धुंध की वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है, जहाँ पर खानेवाल शहर में धुंध की वजह ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तो खानेवाल शहर के दफ्तरों में जाने वाले और स्कूल जाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी खानेवाल शहर के ट्रैफिक हुकाम से बात हुई, इनका कहना था खानेवाल के जो शहरी हैं गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और इस धुंध के मौसम में जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करें। मज़ीद शहरियों का ट्रैफिक हुकाम का ये कहना था कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं वो इस फोग के मौसम में किसी भी किस्म की ड्राइविंग करने से परहेज़ करें। तो जब हमारी मोटरवे हुकाम से बात हुई, मोटरवे हुकाम का ये कहना था कि जिस शदीद धुंध की वजह से हमने मोटरवे M4 और मोटरवे M5 को दोनों सेक्टरों को बंद कर दिया है। तो मोटरवे M5 की बंदिश की वजह से जो तमाम ट्रैफिक का रुख है वो नेशनल हाईवे की जानिब मोड़ दिया गया। नेशनल हाईवे पर इस वक्त शदीद जो ट्रैफिक का दबाव है। मजीद उनका यह कहना था कि खानेवाल के शहरी जो मोटरवे पर सफ़र करें, मोटरवे की हेल्पलाइन या मोटरवे मोबाइल हम सफ़र ऐप का इस्तेमाल करें, उसको देखकर मोटरवे पर सफ़र करें। मजीद उनका यह कहना था कि जो मोटरवे पर सफ़र करने वाले शहरी हैं वो जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करें और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी हरगिज़ न चलाएं। तो खानेवाल के जब शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि मौसम इंतहाई सर्द हुआ है, तो हमने इस वक्त जो खाने पीने की दुकानों का रुख किया है और इस शदीद मौसम ठंडे मौसम में जो है गर्म खाने खा रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, जब हलवा पूरी और दीगर किस्म के खाने खाकर हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। सिलसिला कोहे कराकरम में मौजूद पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाले अहम तजारती गुजरगाह दरे खंजराब को 5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। दरा खंजराब सरहद बॉर्डर प्रोटोकॉल एग्जामिनेंट के तहत ही खंजराब टॉप पर बर्फबारी के बायस सरहद को बंद किया गया है। 30 नवंबर को बंद की जाने वाली सरहद अब 1 अप्रैल को तजारती सरगर्मियों के लिए दोबारा खोली जाएगी। खंजराब पास के जरिए गुज़िश्ता रोज 40 से ज्यादा कंटेनर्स पाकिस्तान पहुंचाए गए। पाक चीन सरहद की बंदिश के मौका पर साबिक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जावेद हुसैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजे इंटरनेशनल कार्गो चाइना टू पाकिस्तान खुरम जफर ने पाकिस्तान आने वाले कंटेनर्स का इस्तकबाल किया।
آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹونی البنیز نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کھیلنے آئے پاکستان کرکٹ اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر اترتے ہی دعوت نامہ بھجوا دیا. ذرائع کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم کی جانب سے دارالحکومت کینبرا میں قومی کھلاڑیوں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. قومی اسکواڈ پرائم منسٹر 11 کے خلاف ٹیسٹ میچ سے قبل 5 دسمبر کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچے گا. آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس موقع پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کو بھی دعوت دی گئی ہے. زکا اشرف 26 دسمبر کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ بھی میلبرن میں دیکھیں گے. زکا اشرف آسٹریلیا کے دورے پر آسٹریلوی کرکٹ حکام سے مختلف امور پر بات چیت بھی کریں گے. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر ڈوزیئرز جاری. اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں منعقدہ سیمینار میں کشمیری رہنما اور ماہرین ہندوستان میں اقلیتوں پر جاری مظالم کے اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے. ممتاز مقررین بشمول وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی اور وزیر اعظم کی خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کشمیر میڈیا سروس اور فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں حاضرین سے خطاب کیا. سیمینار نے ہندوستان میں اقلیتوں کو درپیش ریاستی جبر کو مؤثر طریقے سے اجاگر کیا. آزاد جموں کشمیر کے سابق سردار یعقوب خان، سینیٹر مشاہد حسین اور جے کے پیپلز پارٹی کے صدر حسن ابراہیم جیسی قابل ذکر شخصیات نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے بگڑتے ہوئے حالات پر روشنی ڈالی. سیمینار کے دوران بھارت میں سکھوں کے خلاف جاری ریاستی دہشت گردی کو واضح کرنے کے لیے آپریشن بلو سٹار جیسے تاریخی واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا. Minorities, I see Dinesh Kumar sitting there. I see the Kashmiris sitting here, the most vulnerable and persecuted, oppressed people in the world. mein inka naam aata hai, like the Palestinians, and respectable speakers like very senior Mashahid Hussain Sahab, and the information minister was here, Mr. Solanki Sahab, and Sardar Yaqub Sahab, former president AJK, the dynamic Faiz Naqshbandi Sahab, Jay Salik Sahab, Fazaila Sahiba, who's working day and night in America for the rights of Kashmiris. She's doing a remarkable work. And Brigadier Waqar Hassan Sahab gave an amazing speech. It's like, fully researched. اور بہت سی چیزیں اس میں آپ نے ہمیں سب کو بتائیں about the RSS network and their terror organizations globally. 75-76 سالوں میں بھارت کی ریاست کا جس طرح سے ارتقا ہوا ہے، لیکن اس ارتقا سے پہلے خود پاکستان کا وجود جن حالات میں ہوا، جب میرے استاد مشاہد حسین سید صاحب جیسے لوگ موجود ہوں جو ہماری آگاہی میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ پاکستان کا وجود در حقیقت یہ نام نہاد جو میجورٹیرین اسٹیٹ کا جو تصور تھا اس کی نفی ہے. اگر کیبنٹ مشن پلان کو قبول کیا جاتا اور ایک کنفیڈرل کمزور مرکز لیکن خود مختار ریاستوں اور صوبوں کے بھارت کو اگر اس وقت کی جو کانگریس جماعت اگر قبول کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر ڈوزیر جاری. اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں منعقدہ سیمینار میں کشمیری رہنما اور ماہرین ہندوستان میں اقلیتوں پر جاری مظالم کے اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے. ممتاز مقررین بشمول وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی اور وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کشمیر میڈیا سروس اور فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں حاضرین سے خطاب کیا. سیمینار نے ہندوستان میں اقلیتوں کو درپیش ریاستی جبر کو مؤثر طریقے سے اجاگر کیا. آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر سردار یعقوب خان، سینیٹر مشاہد حسین اور جے کے پیپلز پارٹی کے صدر حسن ابراہیم جیسی قابل ذکر شخصیات نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے بگڑتے ہوئے حالات پر
रोशनी डाली। इस पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तजज़ियाकार सरदार हरमीत सिंह, इनकी जानिब बढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि सरदार साहब बताइएगा, कल जो सेमिनार हुआ है अक़लियतों पर इस्लामाबाद में, उस पर हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो सबके सामने आ गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ तो जो पाकिस्तान है वो बारहा ये बात करता रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान या कुलभूषण यादव या इससे कबल अभी कुछ 8 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो उस चीज को उस तरह पोर्ट्रेट नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर हमने एक चीज देखी, जिस तरह आपने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल जिस तरीके से कनाडा में हुआ, इसी तरह अवतार सिंह खंडा का कत्ल हुआ यूके में, फिर पंचवाड़ साहब का कत्ल हुआ इधर लाहौर में। इसके साथ साथ एक और खबर जो अभी कुछ हफ्ता कबल आई, जिसमें तकरीबन 8 रॉ के जो एजेंट्स थे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते थे कतर के, तो उनकी जब गिरफ्तारी और उनको जो सजाएं दी हैं, तो इस वक्त आलमी सतह पर एक्सपोज हो गए भारत। और जिस दहशतगर्दी की बात हम किया करते थे उस वक्त लोग नहीं मानते थे, पूरी दुनिया जो है उस पर आंखें बंद कर लिया करती थी। लेकिन आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी हुक्काम ने एक बड़ी साजिश की, जो कत्ल की जो साजिश थी पदवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तान के बड़े एक्टिव लीडर हैं, उनके कत्ल की जो साजिश थी उसमें निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और उसको कल सजा भी हुई है। तो ऐसे में अमरीकी हुक्काम ने भी भारत को वार्न किया है कि अगर उनकी सरजमीन पर इस किस्म के इक़दाम होते हैं तो फिर वो उसका खमियाजा जो है वो भारत को भुगतना होगा। तो एक तरफ तो हम कनाडा की इस सूरत-ए-हाल को देखते हैं, दूसरी जानिब इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में अगर आप जो हालात चल रहे हैं, खासकर माइनॉरिटी के हवाले से, खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो मुसलमानों को और मसाजिद को जिस तरीके से वहां पे शहीद किया गया है, और फिर अगर कोई मुसलमान सिर्फ गाय का गोश्त सूंघ भी लेता है तब भी उसकी जो सजा है वो मौत है। तो ये सारी सिचुएशन जो नजर आ रही है वो इंतहाई खतरनाक है। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ ये हालात, अब हिंदुस्तान में तकरीबन 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमें तो एक्टिव हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस बन रही है। तो दूसरी जगह हम 17 बड़ी रियासतों में बगावत देख रहे हैं। मणिपुर को आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे जो बागी हैं उन्होंने अपना सिस्टम जो है उसको संभाल लिया है और कहीं ना कहीं हुकूमत की रट जो है उसको चैलेंज किया है। तो ये सिचुएशन अब जो हमें नजर आती है, ये वो तस्वीर है जो हम देख रहे थे कि मोदी जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म को फरोग दे रहा है, बजरंग दल जैसे तंजीमों को, आरएसएस जैसी तंजीमों को फरोग दे रहा है, तो उससे अंदाजा हमें ये हो रहा है कि अब हालात जिस तरीके से जिस रुख वो जा रहे हैं तो वो इंतहाई खतरनाक है भारत के लिए। और अनकरीब मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनकी जो बगावत है वो कहीं ना कहीं रंग ले आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया, सरदार हरमीत सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर डोज़ीर्स जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में मुनक़िदा सेमिनार में कश्मीरी रहनुमा और माहिरीन हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जारी मज़ालिम के अहम मसले पर बात करने के लिए जमा हुए। मुमताज़ मुकर्ररीन बशमूल वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मशीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल हुसैन मलिक ने कश्मीर मीडिया सर्विस और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में हाज़रीन से खिताब किया। सेमिनार ने हिंदुस्तान में अक़लियतों को दरपेश रियासती जबर को मौसर तरीके से उजागर किया। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार यकूब खान, सेनेटर मुशाहिद हुसैन और JK पीपल्स पार्टी के सदर हसन इब्राहिम जैसी काबिल जिक्र शख्सियात ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को बिगड़ते हुए हालात पर इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद साहब। तो इनकी तरफ बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा कि वकार साहब, ये जो कल सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, हिंदुस्तान क्या जो मकरू चेहरा वो सबके सामने आ गया, अक़लियतों पर बात हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आई थिंक भारत में जो सेकुलरिज्म का एक फसाड था वो तो 2014 के बाद खत्म हो गया, मेनली बिकॉज जब से मोदी आया है। और उसके बाद फिर इनका एक पूरा प्रोग्राम है दुत्पा का जो 2024 में मुकम्मल होना, और इलेक्शन के बाद इनको उम्मीद है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेके फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। तो अक़लियतों के साथ पहले भी बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन आई थिंक RSS के आने के बाद बहुत ज्यादा इसके अंदर तेजी आई है। और टेक्निकली देखा जाए तो 23% टोटल है जो अपर कास्ट, जिसपे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने 77% आबादी को आगे लगाया हुआ है।
اور ان کو پریس کیا, ان کو ڈیوائڈ کر کے پھر رول کر رہے ہیں. سو اس میں آئی تھنک بھارت کے جو تینوں کارنرز ہیں, نارتھ ایسٹ, ساؤتھ اور جو ویسٹ ہے, وہاں پہ سخت شورش بھی ہے, کئی جگہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اور میرے خیال میں 2024 کے الیکشن کے بعد بھارت کے حالات اور خراب ہو جائیں. جی بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. انیس سو اکہتر کی جنگ کی بہت سی انسنی داستانیں ہیں جن میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بھارتی سرزمین پر جنگی قیدی ہوتے ہوئے بھی نہایت ہی چالاکی اور دلیری سے دشمن کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان آرمی کے میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد بن قیدیوں میں شامل تھے جنہیں جنگی قیدی بنا کر بھارت کے قیدی کیمپوں میں لے جایا گیا. پہلے روز سے ہی میجر عبد الرحمان نے بھارتی قید میں رہنا قبول نہیں کیا اور آزادی حاصل کرنے کی خاموش منصوبہ بندی شروع کر دی تھی. میجر عبد الرحمان کو جس کیمپ میں رکھا گیا تھا اس کی حالت انتہائی ابتر اور گنجائش سے زائد قیدیوں سے بھرا ہوا تھا, جس کی وجہ سے میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد سمیت 60 افسران کو میرٹ کے قیدی کیمپ میں منتقل کیا جانا تھا. میرٹ منتقلی کے دوران میجر عبد الرحمان اور دیگر نے منصوبہ بندی کے مطابق اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہی بس میں موجود بھارتی سپاہوں پر حملہ کر دیا. بھارتی سپاہی اس اچانک حملے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے. طویل گتھم گتھا لڑائی کے دوران بھارتی فوجی کے رائفل کا خنجر میجر عبد الرحمان کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا, جس سے وہ زخمی ہو گئے مگر ہمت نہ ہاری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فوجی سے اسٹین گن چھین لی. بھارتی فوجی نے پیچھا کیا مگر میجر عبد الرحمان ان سے چھینی گئی اسٹین گن تالاب میں پھینک کر بھارتی فوجیوں کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے فرار ہو گئے. تھوڑا دور جا کر میجر عبد الرحمان کی ملاقات کیپٹن ارشاد مرزا سے ہوئی, جہاں سے آگے دشمن ملک میں آنے والے مصائب اور خطرات سے دونوں مل کر نبرد آسماں ہوتے رہے. مشکلات اور خطرات سے بھرپور طویل عرصہ کے دوران میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد بالآخر سرحد پار کر کے نیپال جا پہنچے. نیپال میں بھی قید و بند کی صعوبتیں اور کئی مشکلات سے لڑتے ہوئے دونوں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں پہنچ گئے. میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد نے 8 فروری 1971 کو بھارتی قید اور تسلط سے فرار کا سفر شروع کیا اور بالآخر 8 اگست 1971 کو وہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے. ان 7 ماہ کے دوران دونوں نے جمع مردی سے لاتعداد مشکلات کا سامنا کیا اور دشمن ملک میں تقریباً 2800 کلومیٹر سے زائد کا سفر بھی طے کیا. میجر عبد الرحمان اور کیپٹن ارشاد کو ان کی شاندار بہادری اور جرأت کے صلے میں تمغہ جرأت سے نوازا گیا. ایسی بہت سی داستانیں ہمارے سپاہ کی بہادری اور ہمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل میاں طارق جاوید اور ان کی ٹیم کو فرزندان پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ایوارڈ کی تقریب میں چیئرمین پی او سی گلوبل نے اوورسیز پاکستانیوں سے پاک آرمی کا ساتھ دینے کی اپیل کر دی ہے. اپنے جذباتی خطاب میں میاں طارق جاوید نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. اوورسیز پاکستانی ملک کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف پاکستان کی ترقی ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار افواج پاکستان کا ہے. افواج پاکستان اس وقت ہر محاذ پر لڑ رہی ہے اور ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. پاک فوج کی عظمت کو سلام. مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آن اور شان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پانے والے پاک فوج کے شہداء کو اوورسیز پاکستانیوں کا لندن میں فرزند پاکستان ایوارڈ شو میں خراج تحسین اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی. پاکستان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے شہداء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. پاک آرمی آج ہر محاذ کے اوپر لڑ رہی ہے اور ہمارے تمام بارڈر جو وہ گرم کیے ہوئے ہیں ہمارے دشمنوں نے. تو اس موقع پر اتنی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی پاک آرمی کو پاکستانیوں کی سپورٹ کی جتنی آج ہے. آج ہمیں پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. 90 سے زیادہ ملکوں میں اس وقت ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. وہ جو فوجی رات کو بارڈر پہ گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے میں قربان ہوں, میرا خاندان قربان ہے.
मेरी जान कुर्बान है। पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। फर्जंद पाकिस्तान अवार्ड शो की तकरीब के दौरान हाल में जज्बाती मनाजिर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों ने हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार कर दी। तौहीन अमीज पोस्ट के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में शदीद एहतजाज और शटरडाउन हड़ताल जारी है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी ने तालीमी दरसगाहों को बिना बख्शा। मजहबी तौहीन अमीज पोस्ट हिंदू तालिब इल्म पुरतमेश की तरफ से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी। हिंदू तालिब इल्म का ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से है। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट में नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वाक़े पर मकबूजा कश्मीर में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। कश्मीरी तलबा ने एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोदी सरकार ने मामला सुलझाने के बजाय कश्मीरी तलबा पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तजिया निगारों का कहना है कि मोदी सरकार इंतखाबात से कबल जानबूझकर कश्मीर के हालात खराब कर रही है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि तौहीन अमीज पोस्ट के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में शदीद एहतजाज और शटरडाउन हड़ताल जारी है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी ने तालीमी दरसगाहों को भी ना बख्शा है। मजहबी तौहीन अमीज पोस्ट हिंदू तालिब इल्म पुरतमेश की तरफ से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई है। हिंदू तालिब इल्म का ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से बताया जाता है। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वाक़े पर मकबूजा कश्मीर में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। कश्मीरी तलबा ने एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोदी सरकार ने मामला सुलझाने के बजाय कश्मीरी तलबा पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तजिया निगारों का कहना है कि मोदी सरकार इंतखाबात से कबल जानबूझकर कश्मीर के हालात को खराब कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तौहीन अमीज पोस्ट के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में शदीद एहतजाज और शटरडाउन हड़ताल जारी है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी ने तालीमी दरसगाहों को बिना बख्शा। मजहबी तौहीन अमीज पोस्ट हिंदू तालिब इल्म पुरतमेश की तरफ से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई। हिंदू तालिब इल्म का ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से है। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट में नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वाक़े पर मकबूजा कश्मीर में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। कश्मीरी तलबा ने एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोदी सरकार ने मामला सुलझाने के बजाय कश्मीरी तलबा पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तजिया निगारों का कहना है कि मोदी सरकार इंतखाबात से कबल जानबूझकर कश्मीर के हालात खराब कर रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। कश्मीर में शदीद एहतजाज और शटरडाउन हड़ताल जारी। और इस्लाम दुश्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कश्मीर तलबा के एहतजाज के अली असगर सीनियर रिपोर्टर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पाक आर्मी के इश्तराक से अलशिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी का माहिरीन अमराज चश्म की टीम ने RHQ अस्पताल गिलगित में 2 दिन का आई कैंप मुनाकिद किया। आज पहले दिन आंखों के माहिरीन ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मुफ्त मेडिकल कैंप में लोगों को सफेद मोतिया और दीगर आंखों से मुतल्लिक बीमारियों के इलाज की सहूलियात फराहम की गई हैं। मरीजों में ऐनक और मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। मुफ्त मेडिकल कैंप का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आंखों के इलाज मुआवजे की सहूलियात को फराहम करना था। फ्री मेडिकल कैंप के जरिए हजारों मरीजों ने फायदा भी उठाया। बाद कमांडर FCNA ने अलशिफा की इंतजामिया के साथ अस्पताल का दौरा भी किया और मरीजों से मुलाकात की। पाक आर्मी गिलगित की आवाम के लिए वक्तन फवक्तन फ्री मेडिकल मुनक्किद करवाती रही है, ताहम
हर जिले में आवाम की सेहत की बुनियादी सहूलियात के हुसूल में आसानी पैदा हो सके। हमने 3 रोज़ा कैंप लगाया था दियामर में और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तकरीबन मोर देन 100 पेशेंट्स हमने उनकी सर्जरीज की थी और तकरीबन 1800 मरीज़ वहाँ हमने चेक किए थे। यहाँ पर ये जो सारा अरेंजमेंट है, सारा फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया जनरल काशिफ के ताउन से हमने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, उनकी कोलैबोरेशन है और हम उनके बड़े मशहूर हैं। तो इस तरह हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोगों के और हमें ग्रीन पाकिस्तान के तहत SIFC के शुरू करदा जदीद कॉर्पोरेट फॉर्म्स बैन अल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। 2 रोज कबल चीनी वफ्द ने खानेवाल में पिरवाल फॉर्म्स का दौरा किया है। चीनी वफ्द 6 माहिरीन पर मुश्तमिल था। चीनी वफ्द ने पिरवाल फॉर्म्स में तमाम मशीनरी और फसल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। फार्म ग्रो के ज़रिए तहत पिरवाल में इस फॉर्म का इफ्तिताह आर्मी चीफ और वजीर आजम ने रवा साल जुलाई में कर दिया था। इस फॉर्म में पहली फसल तैयार हो चुकी है और इसके कटाई का अमल भी जारी है। कटाई के अमल में जदीद मशीनरी ज़ेर इस्तेमाल लाई जा रही है। ये फॉर्म ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पैदावार फराहम करने वाला पहला जदीद कॉर्पोरेट फॉर्म है। चीनी वफ्द के शुरा ने फार्म ग्रो फॉर्म्स और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को भी खूब सराहा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर मुल्की अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 1600 अफगान शहरियों में 373 मर्द, 362 खवातीन और 865 बच्चे अफगानिस्तान चले गए। 30 नवंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानून अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 536 3,98,536 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 52 गाड़ियों में 362 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। तारीख गवाह है कि जब तालीमी मराकज कायम हुए तो तहजीब ने जन्म लिया और इंसान ने तरक्की की। कदीम शाहरा रेशम के जरिए महतमा बुद्ध के शागिर्दों ने गंधारा में 8 रोशन ख्याली के रास्ते फैलाए हैं। गंधारा सिर्फ टेक्सला और सवात के इलाके तक महदूद नहीं बल्कि अफगानिस्तान से कश्मीर तक फैला हुआ है। तारीखी अहमियत के हामिल एक अहम मकाम की शान सदियों से धुंधला गई और अब खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माजी में शारदा भी टेक्सला यूनिवर्सिटी जैसी एक बेहतरीन और खूबसूरत यूनिवर्सिटी थी। 2.5 साल पहले भी इस यूनिवर्सिटी में एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम दी जाती थी। शारदा में 5000 से ज्यादा तलबा ने तालीम हासिल की। माजी में शारदा में कायम तालीमी मराकिज की आवाज आज भी उसके पत्थरों में गूंजती है। प्रोपेगेंडे के जरिए हिंदुस्तानी कदीम दरसगाह शारदा को हिंदू मंदिर में तब्दील करने के दर पे है। ये अब कोई मुआमा या गैर जरूरी तनाज़े नहीं रहा जिसका दावा भारतीय सरकार ने 2019 में किया। हिंदुस्तान मजहबी जमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने तहजीब की हिफाजत करते हुए शारदा को एक महफूज मकाम करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान शारदा की तारीख और सकाफत, अहमियत और तकद्दुस को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में माजी के इल्म फन के कीमती मोतियों को महफूज रखने की भरपूर कोशिशें जारी रहेंगी। अगर हम अपने माजी की हिफाजत नहीं कर सकेंगे तो अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। From the hunter-gatherer lifestyle to the current sophisticated moment, dramatic environmental changes by global climate forced the settlements to take birth. And when constituted the ritual centers, civilization was born. The ancient Silk Route, through which were the disciples of Buddha, spread his eightfold path in Gandhara region. Gandhara was not confined just like in Texila and Sawat region. It was started from Bamiyan, Afghanistan till Kashmir. Nestled in the heart of the breathtaking Neelam Valley in present-day Azad Jammu and Kashmir, a place of profound historical significance, exists as a collection of ruins whose glory faded over centuries. This site was center of attraction for the pilgrims, monks who left their mark
in the form of rock inscription in the surrounding of this valley. जो शारदा है इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि टेक्सला में है, जैसे कि तखबई में है और जैसे कि स्वात में है, तो एक बहुत अहम यूनिवर्सिटी थी। अगर हम उसको 2-2.5 साल पीछे देख ले, वहां पे जो सीट ऑफ लर्निंग था वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को या सिर्फ ये नहीं था कि बुद्धिज्म की प्रचार करते थे, वो तो पूरा एक सेट ऑफ लर्निंग वो दे रहे थे मुख्तलिफ मज़ामीन में। The echoes of its vibrant past as a Buddhist learning center still resonate in these weathered stones. This remains no more a mystery and an unnecessary controversy, as claimed by the Indian government in 2019, denying thousands of years of valuable archaeological history and Buddhist logical lineage with the monasteries. People used to talk about the Sharda corridor as well. That when we talk about the Kartarpur corridor, it's between two international borders. So the case is very different. The remains of Learning Center were converted to Hindu temple with dome structures of goddess depiction. India is using religious sentiments for political gain by manipulating the narrative and converting ancient sites like Buddhist Learning Center, Sharda, into Hindu temples, as was done in past with Babri Mosque. The government of Pakistan, safeguarding this Indus land, has declared Sharda Peak a protected site, maintaining its historical and cultural significance, especially with its status being at line of control and upkeeping its sanctity for the pilgrims, just like all other sites. A humongous effort is required under the patronage of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to preserve these whispering pearls of learning and art from the past. अगर हम अपने पास्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे तो हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हमारे पास्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो जिस शारदा की मैं बात कर रही हूँ वो कोई मामूली जगह नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया कि स्मोक की सूरत हाल के बायस कल तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया कि स्मोक की सूरत हाल के बायस कल तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया कि स्मोक की सूरत हाल के बायस कल तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अपडेट करते चले आपको कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया है कि स्मोक की सूरत हाल के बायस कल तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मार्केटिंग, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अपडेट करते चले आपको कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया गया है कि स्मोक की सूरत हाल के बायस कल तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे भी कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 13 कार्रवाइयों के दौरान 142 किलोग्राम मुनशियात बरामद, 16 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जमान ANF के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से 474 ग्राम आइस बरामद कर लिया गया है। पेशावर का रिहायशी मुलजिम जद्दा के लिए रवाना हो रहा था। एक और कार्रवाई में सरगोदा के रिहायशी मुलजिम के ट्रॉली बैग से 940 ग्राम आइस बरामद हुई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरी कार्रवाई में मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 950 ग्राम आइस पकड़ी गई। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के जूतों में छुपाई गई 842 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। दीगर कार्रवाइयों में रेलवे स्टेशन लाहौर के करीब वाक़
कार्गो सर्विसेज ऑफिस में दौरान कार्रवाई 3 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में वाक़ कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किए गए पार्सल से 5 किलो आइस बरामद, जबकि गुजरांवाला के मोहल्ला बख्तेवाला में घर पर छापे के दौरान 13 किलो 200 ग्राम अफ्यून और 6 किलो चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और कार्रवाई में कामिलपुर इंटरचेंज सरगोदा के करीब गाड़ी से 3 किलो हेरोइन बरामद करके 3 मुलजिमान पकड़ लिए गए। इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेट पर खाद न मिलने की शिकायत। सोशल मीडिया क्लब और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ओपन अवामी शिकायत डेस्क कायम कर दिया गया है, जहां काश्तकारों ने खाद माफिया और इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लुगारी से। जी अब्दुल गफ्फार लुगारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास डीसी ऑफिस के सामने, जहाँ मीरपुर खास के आबादगारों को खाद जो है वो सरकारी रेट के ऊपर न मिलने के खिलाफ सोशल मीडिया क्लब मीरपुर खास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक अवामी अदालत लगाई गई। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के जिम्मेदार और सोशल मीडिया क्लब मीरपुर खास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते इस हवाले से उनका क्या कहना है। तो ये हमारा हर हफ्ते अवामी डेस्क लगती है जो अवामी अदालत के नाम से। मीरपुर खास में ना जुल्म चल रहे हैं, इंतजामिया खामोश है, इस हवाले से हम हर हफ्ते डेस्क लगाते हैं। आज जो हमारे डेस्क बांड जो सरकारी बांड है उसके ऊपर ब्लैक मार्केट चल रही है, उसके लिए हमने ये ओपन मार्केट लगाई है। अदालत के लोगों के ख्यालात सुने और अदालतों तक आवानों तक पहुँचाएँ। ये बांड जो है खाद जो है 332 वाली बोरी अभी 5200 की चल रही है, जो आबादकारों के साथ जुल्म है। गुजारिश ये होगी कि जो खाद का सरकारी रेट है उस रेट पर खाद दी जाए, और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, हाथ से खाद को बंद किया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है, और सरकारी रेट पे खाद देने के लिए इंतज़ामिया जो है वो इनको गोदाम वो सील करे और खाद जो है लोगों को सरकारी रेट पर दे। डीसी कमिश्नर ऑफिस साहब जे तसांगे भाण ब्लैक मेलर दे मिले तो हाँ हिते भाण 4 साल ते आन असांखे भाण कोन मिलो। हर साल इहो ड्रामो रचाए वेठा आहिनि, को पुछण वारो वग़ैरह कोन्हे। मुंहिंजो पंहिंजो ज़मीन बलोचिस्तान में उते 3250 रुपए में यूरिया ख़रीद करे वेठो आहियां। हिते असांखे साॻी भाण मिले तो 5000 6000, कल 5000 में मूं 60 बोरियूं लाथियूं आहिनि। ही ज़ुल्म असां सां आहे, आबादगारनि सां आहे, हारनि सां आहे। असां सां ज़ुल्म केसिताईं जारी रहंदो? ही ब्लैक मेलर माफिया हिननि जे ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई छो कोन थो करे? इहो मुतालबो आहे त भई असांजा रेट भाण जा सही मुक़ररु कया वञनि। सरकारी रेट ते असांखे कंपनी रेट ते असांखे ॾिनो वञे भाण। कंपनी रेट आहे 3250 रुपया यूरिया जो, असांखे उन रेट ते भाण ॾिनो वञे यूरिया जो। ऐं DP जो रेट आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जे ताउन सां सोशल मीडिया जे जेको प्रोग्राम आहे एहतजाज जो, इहो चवणु चाहींदासूं त ही ब्लैक मार्केटिंग जेका आहे उहा ख़तमु हुअणु घुरिजे। इन इंतज़ामिया खे तहरीक वठणु खपे। आम हारी आम ज़मींदार सां जेको ज़ुल्म आहे उहो ख़तमु थियणु खपे। त ही जेको इम्पोर्टेड भाण 3200 रुपए जो आहे, एंग्रो यूरिया 3400 रुपया गवर्नमेंट जो रेट आहे, 23 जेको भाण आहे उहो आहे। अब रुख करते हैं पंजाब के शहर आलाबाद का, जहां शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। शदीद स्मोक की वजह से मेन शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। हमारे नुमाइंदे अरशद सामल हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अरशद, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तहसील सोनिया भर में एक बड़ी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर जाने वाले राइस मिल्स, फोकर और बगैर रखरखाव भट्टों के साथ साथ फसलों की बाकियात को जलाने पर तहसील इंतजामिया व दीगर इदारे मुकम्मल खामोश हैं, जिसकी वजह से इलाहाबाद और इसकी गिरदोरवा में स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शदीद स्मोक की वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है, जबकि मेन शाहराहों पर मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है, जबकि दूसरी जानब तहसील व जिला इंतजामिया आलूदगी का सबब बनने वाले गाड़ियों, बगैर रखरखाव से चलने वाले भट्टा खिस्त और ठोकर उड़ाने वाली राइस मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। फसलों की बाकियात और कूड़ा गिगड़ जलाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
جس کی وجہ سے الہٰباد اور اس کے مضافات میں اسموگ سے بڑھتی جا رہی ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے الہٰباد اور اس کے گرد و نواح میں اسموگ کا سبب بننے والے عوامل کی فوری تدارک کا مطالبہ کیا ہے. جی ارشد ساول ہمیں اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اوکارا میں ایڈز کے عالمی دن کے حوالے سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں واک کا انعقاد کیا گیا. واک کا انعقاد نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا. واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، فاؤنڈیشن کے اراکین نے شرکت کی. واک کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ایڈز اپنا قابل علاج مرض ہے. ایڈز کی بروقت تشخیص سے ہی علاج ممکن ہے. ایڈز کی میڈیسن لائف ٹائم کھا کر موت سے بچا جا سکا. واک کا مقصد ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی ہے. لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں سی ای او شاہد حیدر کی ہدایت پر ملازمین کے اعزاز میں ویلفیئر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر سابق اہلکاروں کے 26 یتیم بچیوں کو ملازمت فری دی گئی ہے. ملازمین کی اعلیٰ کارکردگی پر نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ 26 ملازمین کو باوقار طریقے سے رخصت کیا گیا ہے. لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں سی ای او شاہد حیدر کے ہدایت پر ملازمین کے اعزاز میں ویلفیئر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر سابق اہلکاروں کے 36 یتیم بچوں کو ملازمت دی گئی. ملازمین کو اعلیٰ کارکردگی پر نقد انعامات بھی دیے گئے، جبکہ 26 ملازمین کو باوقار طریقے سے رخصت کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے. جی ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی کوہ نور، گزشتہ چند دنوں میں لیسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف ایگزیکٹو شاہد حیدر کے بیان کے مطابق یہ کے بعد دیگر لیبر کے متعلقہ 3 انتہائی اہم نوعیت کی تقریبات منعقد ہوئی. ان تقریبات میں لیسکو انتظامیہ کے اعلیٰ حکام، سی ایس ڈی رائس گڑھ، ڈائریکٹر ایڈمن ضمیر حسین کلاچی، ڈائریکٹر ایچ آر نعمان غفور، ڈائریکٹر سیفٹی فواد خالد، پی آر او راہ مسعود، ڈپٹی مینیجر سلمان حیدر، ایکشن رامی روڈ نعمان بھٹی اور ایکشن مریض کے کامران کے علاوہ بزرگ مزدور رہنما خورشید احمد، اسامہ طارق، یونس کمبو، رانا شکور اور محمد شفیق نے شرکت کی. ان تقاریب میں سی او لیسکو شاہد حیدر اور بزرگ رہنما خورشید احمد نے مشترکہ بیان میں کہا کہ لیسکو میں کارکردگی کی بنیاد پر اچھے برے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. خدمت اور دیانتداری لیبر کی انتھک محنت مشقت کی وجہ سے لیسکو لیڈنگ پوزیشن میں ہے. پہلی تقریب میں اعلیٰ کارکردگی پر شاہدرہ سب ڈویژن کے کاشف امید اور مریدیہ سب ڈویژن کے مسعود الرحمان کو 50,000 ہزار کے نقد انعامات دیے گئے. دوسری تقریب میں مرحوم ملازمین کے 26 بچوں کو نئی ملازمت کے تقرر نامے دیے گئے، جبکہ تیسری تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن پیپرز کا چیک اور تحائف دے کر باوقار طریقے سے رخصت کیا گیا. سی او لیسکو شاہد حیدر اور خورشید احمد کی اس دلجوئی اور حوصلہ افزائی پر مبنی تقاریب سے 18 گھنٹے بلا ناغہ کام کرنے والے، کام کے بوجھ تلے دبے ہوئے، تھکن سے چور اور عدم تحفظ کے شکار سٹاف کی مایوسی اور پریشانی کسی حد تک کم ہوئی ہے. مگر کوہ نور غور طلب بات یہ ہے، محنت کا معاوضہ، ہفتہ وار چھٹی، 8 گھنٹے ڈیوٹی، نئی بھرتی نہ کرنا کے اعصاب شکن مسائل اور پاور سیکٹری و پاور منسٹر کا بے رحمی پر مبنی ظالمانہ رویہ جوں کا توں ہے، جو انسانی طاقت کو دن بدن کمزور کر رہا ہے. جی بہت شکریہ. آپ ساجد قاسمی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کینٹ ڈویژن کا وہیکل سنیچر اور چور گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. وہیکل سنیچرز اور چور گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے ہیں. ملزمان میں سرغنہ علی اصغر عرف ساغر، سمران سمیر شہزاد اور محمد ارشد شامل ہے. ملزمان سے 65 موٹر سائیکلیں اور ایک رکشہ برآمد ہوا ہے. ڈی ایس پی اے وی ایل ایس کینٹ ڈویژن میاں محمد یونس نے بتایا ہے کہ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ اور درجنوں وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں، گلی محلوں اور پارکوں کے علاوہ پلازوں میں
खड़ी मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स को मास्टर चाबी के जरिए खोलकर चोरी करते और दूर दराज इलाकों में सस्ते दामों फरोख्त करते थे। शाह आलम मार्केट लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमले और शहरियों में झगड़ा हो गया। मौका पर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई। आपको बता रहे हैं कि शाह आलम मार्केट लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमले और शहरियों में झगड़ा हो गया। मौका पर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से। शहर लाहौर में शाह आलम मार्केट लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमले और शहरियों में झगड़ा हो गया है। मौका पर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई और मामलात का जायजा लिया है। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि शाह आलम मार्केट लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमले और शहरियों से झगड़ा हो गया। मौका पर पुलिस की नफरी भी इस मौका पर पहुंच गई है। अपडेट करते चले आपको कि शाह आलम मार्केट लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दौरान अमले और शहरियों में झगड़ा हो गया है। मौके पर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जुनेद, जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और आसिफ हैदर की हिदायत पर जो है इंसदादे तजावुजात कैंप जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, जिनका मकसद जो है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करना है। इंसदादे तजावुजात कैंप रावी जोन के हवाले से बात करें तो शाह आलम मार्केट में कैंप लगाया गया था, जिसमें शहरियों और ये बल्दिया उज़्मा के एहलकारों के दरमियान जो है वो लड़ाई और तर्क कलामी का वाकया पेश आया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रावी जोन अमले और शहरियों में झगड़ा हुआ है। और आपको बताते चले, जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि मुबीन और बट नामी लड़का है, वो एहलकार है ये बल्दिया उस्मा लाहौर का, जिनकी जानिब से जो है शहरी को तशद्दुद किया गया है। अगर शहरी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो शहरी का नाम सलमान नूर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 साल है, जिसे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और मौका पर जो है उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई थी और जाए वकूवा से जो है उन्होंने तफ्तीश का आगाज कर दिया था। और कारपोरेशन लड़के मुबीन और वासिफ भट्ट जो है उनका दूसरी जानिब कहना है कि शहरियों ने जो है वो कैंप पर आकर जो है हमला किया है। और जबकि शहरियों का कहना है कि ये कारपोरेशन अमले की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इस वाले से एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आफिया हैदर और CEO लाहौर जो है इकबाल फरीद को वाकई का नोटिस लेना चाहिए और कारपोरेशन एहलकारों को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि वो तजावुजात का खात्मा करें, ना कि किसी भी शहरी पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा सके। जी जुनेद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि यूरोपियन एजेंसी के वफ्द का लाहौर का 2 रोजा दौरा खत्म हो गया है। MD वासा गुफरान अहमद ने हेड ऑफिस लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। यूरोपीय मिशन की तरफ से वासा लाहौर को तकनीकी मुआवनत के लिए 12 मिलियन यूरो इमदाद मंजूर किए गए हैं। इससे कब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क्याम के लिए 3 लाख यूरो इमदाद फराहम की गई। यूरोपियन मिशन के साथ एस पेबलियन कौमी इक्वाइपमेंट कंसल्टेंट भी इजलास में शरीक हुए। वासा लाहौर से डायरेक्टर प्लानिंग ज़िशान बेलाल, मुदस्सिर जावेद, डिप्टी डायरेक्टर समीना आसिफ समेत दीगर भी मौजूद थे। सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी चौधरी अमजद जट ने सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गुल की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर शानदार जलसे का एहतमाम किया। इस मौका पर चौधरी असलम गुल ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। से आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जनाब जुल्फकार भुट्टो शहीद ने आज के दिन 56 साल पहले इसी लाहौर शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। असल में ये जमात जो है ये आमरीत के ख़िलाफ़, ये जागीरदारों के ख़िलाफ़, सरमायादारों के ख़िलाफ़, ये मजलूम गरीबों के लिए, हारियों के लिए, छोटे किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, आम मजदूर के लिए, खेत मजदूर के लिए ये पार्टी की बुनियाद रखी थी। सारे पाकिस्तान के अवाम ने, सारे मजदूरों ने जुल्फकार भुट्टो की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और उसके बाद वो भुट्टो साहब के साथ चल पड़े। तो ये जो
जालिम हैं, जो जागीरदार, जो सरमायादार थे, उनको रंज था और वो भुट्टो साहब से खफा थे कि हमें एक नीचे वाले तबके को भुट्टो साहब ऊपर ले आए और हमें दबा दिया। तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो के हम बड़े मशकूर हैं कि भुट्टो साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, जिसने जमहूरियत बहाल की, जिसने अवाम के हकूक़ के लिए 73 का आइन दिया, बहुत सारी इस्लाहत की, मजदूरों के लिए इस्लाहत की, तालिब इल्मों के लिए इस्लाहत की। जुल्फ़िकार भुट्टो ने लोगों का जीने का ढंग दिया, लोगों को सोच दी और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की तीसरी नस्ल जो है वो आज भी पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शक्ल में वो संभाले हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद फरीद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने पैफ के सीनियर अफसरान से मुलाकातें की और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दौरे भी किए। अफसरान ने नए एमडी को पैफ आमद पर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर एमडी ने कहा कि पैफ हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इदारा और तलीमी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। पैफ से मुंसलिक पार्टनर स्कूलों में 26 लाख से ज्यादा ज़ेरी तालीम तलबा और तालिबात की मयारी तालीम को यकीनी बनाकर मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। पैफ के ज़रिए तमाम पंजाब के कोने कोने में स्कूल खोले जाएंगे ताकि कोई बच्चा मयारी तालीम से महरूम न रह सके। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। पार्टी सेक्रेटरीट में अहम इजलास में शिरकत की नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि इंतकाम की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया एवनफील्ड केस अपने अंजाम को पहुंच गया। अदलिया जल्द अज जल्द झूठे मुकदमात को खत्म करके इज्जत में इजाफा करेगी। आपको बता रहे हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। पार्टी सेक्रेटरीट में अहम इजलास में शिरकत की नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि इंतकाम की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया एवनफील्ड केस अपने अंजाम को पहुंच गया है। अदलिया जल्द अज जल्द झूठे मुकदमात को खत्म करके इज्जत में इजाफा करेगी। इसी पर मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर राना सलमान आरिफ से। जी राना सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी और गले लगाकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजर से मुलाकातें भी की, जिसमें यूनियन काउंसिल की सतह पर यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर पर भी मुशावरत हुई। अजलास में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी जायजा लिया गया। मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि नवाज शरीफ को जल्द नहीं बल्कि 7 साल बाद इस केस में रिलीफ मिला है और उनका यह भी कहना था कि अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो एक फ्रॉड है, जिसमें जज मलक अरशद मरहूम के खिलाफ फैसला आ चुका है। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले किए गए जो कि अदलिया के माथे पर एक दाग है। इन फैसलों को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दिया जाए, जो कि अदलिया के लिए बाइस इज्जत साबित होगा। मेरे ख्याल से अल अजीजिया रेफरेंस 2 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। अदालतों ने फैसला कानून के मुताबिक करना है, न कि तशरीह के मुताबिक। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस वक्त कानून मौजूद है, चैलेंज नहीं किया गया कि नहली ताहियात है, बल्कि 5 साल के लिए होगी। चेयरमैन पीटीआई के जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफात अमल है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया था, आज वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के आड़े आ रहा है। ये अल्लाह का इंसाफ है। इनका कहना था कि नवाज शरीफ हर डिवीजन के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में हर उम्मीदवार से खुद मुलाकात करेंगे और हर डिवीजन की मीटिंग के बाद पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी
जी बहुत शुक्रिया राना सलमान आरिफ, आप अपडेट कर रहे थे। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने बच्चों के आलमी दिन के मुनासबत से टाउन हॉल मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में तलबा और तालिबात के वफूद से मुलाकात की, सरगर्मियों का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं अयान मलिक की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर ने टाउन हॉल में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तलबा और तालबात के वफूद से मुलाकात की और अपने हाथ से मिट्टी के खिलौने बनाकर तकरीब का आगाज किया। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना था कि बच्चों के आलमी दिन के हवाले से टाउन हॉल में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। हम टाउन हॉल में लाहौर के 20 अडोप्टेड सरकारी स्कूल के बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में परफॉर्म करने का मौका फराहम कर रहे हैं। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर लाहौर इकबाल फरीद ने कहा कि ये इवेंट बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस तरह के इवेंट से इनकी ज़हनी नशोनुमा में इजाफा होगा। जी ऐसा है कि आलमी दिन के मौके पर, बच्चों के आलमी दिन के मौके पर हम लोगों ने एक MCL ने स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाना और डिफरेंट उनको साइंस की एक्टिविटीज़ किताबों में तो पढ़ी जाती है, लेकिन उसका ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकली नहीं होता, स्कूलों में लैब नहीं होती। तो यहाँ ये सारी एक्टिविटी दिखाई गई है। बच्चों आलमी दिन MCL ने मैडम राफिया हैदर के हुक्म पे जो है ना ये सारी एक्टिविटीज की हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है MCL की तरफ से। देखिए ये हम डिप्टी कमिश्नर जो है मिस राफिया हैदर, उनका इनिशिएटिव है। इससे पहले तो आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में चिल्ड्रन डे की इतनी अच्छे तरीके से कभी सेलिब्रेशन नहीं हुई, तो उन्होंने लाहौर के क्योंकि 20 स्कूल्स जो है उनको अडॉप्ट किया हुआ है। उसमें हमने 5 सेशंस इन 20 स्कूल्स में करवाए हैं, जिसमें एक पॉटरी है, मिट्टी से आगे के नाम का एक प्रोजेक्ट है। इट्स अ सोशल एंटरप्राइज जो बच्चों को क्ले के साथ जुड़ना और किस तरह हम अपनी कल्चरल जो पुरानी टेक्निक्स हैं वो कर सकते हैं, वो पॉटरी के हमने सेशंस कराए हैं। इसके अलावा साइंस फ्यूज एक सोशल एंटरप्राइज है जो बच्चों में साइंस की आगाही के लिए काम कर रहे हैं। हम नौजवानों के लिए इस तरह के बेहतरीन सरगर्मियों का महीने में एक दफा जरूर आगाज करें, जिनसे इनको MD वासा गुफरान अहमद की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर पानी का ज़िया रोकने के लिए सरगर्म अमल है। वासा लाहौर ने माह नवंबर की रिपोर्ट पेश कर दी। 8,17,500 रुपए की 163 चालान भी किए गए हैं। जुबली टाउन में सबसे ज्यादा 3,46,000 रुपए के 77 चालान किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की खसूसी हिदायत पर वासा लाहौर पानी के ज़िया रोकने में सरगर्म अमल है। वासा लाहौर ने माह नवंबर की रिपोर्ट पेश कर दी। माह नवंबर में 8,17,500 के 163 चालान किए गए। इकबाल टाउन में 22 चालान जो कि 1,23,000 रुपए सारिफीन के बिल्स में शामिल कर दिए गए। इसी तरह अजीज भट्टी वाघा टाउन में 9 चालान 41,000 रुपए, दाता गंजबख्श टाउन 1 चालान 5,000 रुपए, कुलबग टाउन में 39 चालान 2,55,000 रुपए के किए गए। जुबली टाउन में सबसे ज्यादा चालान 70 किए गए, जिसमें 3,46,000 रुपए की रकम शाया की गई। नश्तर टाउन में 2 चालान 7,000, रावी टाउन 4 चालान 22,000 और शालीमार टाउन 9 चालान 23,500 रुपए के किए गए। डॉल्फिन फोर्स की तरफ से लामा इकबाल टाउन में 1 चालान 5,000 रुपए का रिपोर्ट किया गया। MD वासा गुफरान अहमद ने पानी के ज़िया रोकने के लिए सख्त एक्शन की हिदायत की है। कोई सारफ अगर बार बार पानी के ज़िया में मुलव्वस पाया जाए तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। अदालत आलिया के हुक्म पर पानी के ज़िया करने वाले घरेलू सारिफीन को 5,000 और कमर्शियल सारिफीन को 10,000 तक का चालान किया जाएगा। पानी नेमत खुदाबंदी है, आने वाली नस्लों के लिए ज़िया को रोकना होगा। गुफरान अहमद का कहना है कि पानी के ज़िया रोकने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली को। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां मज़ीद तेज कर दी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स कल से 19 दिसंबर तक 14 रोज के लिए जारी रहेंगी। पार्लिमानी बोर्ड की पहली मीटिंग कल सरगोदा डिवीजन से शुरू के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। 6 दिसंबर को KP हजारा और मालाकंड डिवीजन, 7 दिसंबर बरोज जुमेरात को सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों, 8 दिसंबर को बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज लिए जाएंगे। 9 दिसंबर को मुल्तान डिवीजन, 11 दिसंबर को साहिवाल डिवीजन, 12 दिसंबर को फैसलाबाद डिवीजन, 13 दिसंबर को गुजरांवाला, 14 दिसंबर को लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को मीटिंग्स में शामिल किया जाएगा। 15 दिसंबर को लाहौर सिटी डिवीजन, 16 दिसंबर को सिंध, 18 दिसंबर को महसूस नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा की दीगर डिविजन्स के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज होंगे।
समुद्री से अफसोसनाक खबर आपको देते हैं कि जहां वालिदैन ने 3 बेटियों के सर हथौड़े से कुचलकर खुदकुशी कर ली है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। समुद्री से ये अफसोसनाक खबर मंजर-ए-आम पर आई है, जहां वालिदैन ने 3 बेटियों के सर हथौड़े से कुचलकर खुदकुशी कर ली है। नवाही इलाके 271 राब में वाकया पेश आया है, जहां गुर्बत से तंग आकर ताहिर नामी शख्स ने बीवी के हमरा 3 बेटियों को पहले जहरीली गोलियां दी और फिर हथौड़ों के साथ मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद खुद भी गंदुम में रखने वाली गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया है। इतलात के मुताबिक ताहिर नामी शख्स ने लोगों से कर्ज लिया था जो वो अदा नहीं कर सका था। ताहिर ने मुबैना तहरीर भी लिखी है जिसमें उसने बताया कि मैं अपना और अपने बच्चों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोगों का कर्ज अदा करने की ताकत नहीं, जिसकी वजह से मैं खुद और अपनी फैमिली को कत्ल कर रहा हूँ। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। खबरों के तमाम तर तफसीलात आपने जाने, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।